الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے کچھ دروس میں ہم لوگوں نے کچھ اہم قواعد کو پڑھا تھا جو قواعد کی افتعال سے تعلق رکھتے تھے. کچھ قواعد کا تعلق افتعال کے فا کلمہ سے تھا اور کچھ قواعد کا تعلق افتعال کے عین کلمہ سے تھا. افتعال کے فا کلمہ سے جن قواعد کا تعلق تھا وہ دو قاعدے تھے. قاعدہ نہ یہ کہ یہاں پر قاعدہ ہے اور ایک یہ دوسرا قاعدہ ہے. اگر افتعال کا فا کلمہ دال زال زا ہو تو کیا کیا جائے گا، یہ بات وہاں پر بتائی گئی تھی. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر افتعال کا فا کلمہ صاد زا طا زا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا. اس طرح سے ایک تیسرا قاعدہ اور تھا، یعنی کہ افتعال کے فا کلمہ سے تعلق تین قواعد کا تھا. یہاں پر تیسرا قاعدہ ایک اور ہے کہ اگر افتعال کا فا کلمہ سا ہو تو کیا کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پیچھے پڑھی ہیں. اس کے بعد افتعال کا عین کلمہ، اس کے بارے میں ایک قاعدہ تھا، اور وہ قاعدہ ہے کہ افتعال کے اگر عین کلمہ میں تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا زا ہو تو ایسی صورت میں افتعال کے عین کلمہ میں کیا 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 جائے گا. یا اور دوسری چیزیں کیا کی جائیں گی، کلمے کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی. اور پھر یہاں انہوں نے حروف کئی ایک ذکر کیے ہیں، مثالیں دو ذکر کی ہیں، اور لیکن میں نے ساری مثالوں کو بتایا تھا وہاں پر اور سمجھایا تھا کہ کیسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کی مثال یا اس قاعدے کی مثال قرآن میں بھی آئی ہوئی ہے، تو اس لیے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. جیسے کہ یخصمون اور یہدی، یہ دو کلمات ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو یخصمون کس باب سے ہے تو کہیں گے اصل میں یختصمون ہے، یہدی اصل میں یہتدی ہے. پھر کیسے یختصمون سے یخصمون بنا اور کیسے یہتدی سے یہدی بنا، یہ ڈیٹیل سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں دوسرا باب، یعنی کہ ثلاثی مزید فی جو کہ غیر ملحق، یعنی کہ ثلاثی مزید فی کے جو ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہے. تو ثلاثی مزید فی کے جو ہے دو قسمیں ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے سمجھا ہے، ایک قسم کی ملحق کی ہے، ایک ہے غیر ملحق. تو بات ابھی غیر ملحق کی چل رہی ہے، لیکن ثلاثی مزید فی ملحق غیر ملحق کے جو ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی غیر ملحق کے جو ابواب ہیں ان میں سے پہلا باب باب افتعال ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا. اور اس کے بعد دوسرا باب ہے استفعال. اور ایک چیز اور یہاں پر سننے کی ضرورت ہے کہ ثلاثی مزید فی جو غیر ملحق ہے اس میں پھر دو قسمیں ہیں، کہہ رہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں کہ با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. یعنی کہ وہ ثلاثی مزید فی کی سب سے پہلے دو قسمیں ہیں، ایک ملحق اور دوسری غیر ملحق. تو ملحق والی بحث بعد میں آئے گی، ابھی یہاں سے غیر ملحق کے ابواب کو ذکر کر رہے ہیں. اور غیر ملحق میں بھی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ افعال جن کے شروعات میں حمزہ وصل لگا ہوا ہے اور ایک وہ افعال جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں لگا ہوا ہے. تو ثلاثی مزید فی غیر ملحق با حمزہ وصل یعنی کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل لگا ہے، یہ اس سے 7 باب آتے ہیں. پہلا باب افتعال ہے اور دوسرا باب جو یہاں پر ہے وہ ہے استفعال. دوسرا باب استفعال ہے. استفعال کہہ رہے کہ دوسرا باب استفعال، کہہ رہے کہ اس کی علامت کیا ہے باب استفعال کی، کہہ رہے کہ اس کی علامت فا کلمہ کے پہلے سین اور تا کی زیادتی ہے. جیسے کہ اس کے جو ہے اس کے جیسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک فعل ہے نصرا نصرا نصرا، تو نون صاد را، تو اس میں فا کلمہ کیا ہے نون. اس نون سے پہلے اگر ہمیں سین اور تا کی زیادتی مل رہی ہے اور شروع میں حمزہ وصل لگا ہوا ہے تو وہ باب استفعال ہوگا. تو آسان سی چیز ہے، واضح سی چیز ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ استفعال اس کی علامت فا کلمہ کے پہلے سین و تا کی زیادتی ہے. جیسے الاستنصار، الاستنصار کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی سے مدد مانگنا. تصریف ہو یعنی کہ استنصار کی گردان کیا آئے گی یا باب استفعال کی گردان کیا آئے گی، تو یہاں پر انہوں نے گردان لکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر. الامر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. الظرف منه مستنصر. پیچھے جو ثلاثی مزید فی کے ابواب شروع کرنے سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا جو ہے ماضی مجہول کیسے بنایا جائے، ان سے ماضی مجہول یا مضارع مجہول یا اس طرح سے اس میں فاعل کیسے بنایا جائے گا، اس میں مفعول کیسے بنایا جائے گا، ظرف کیسے بنایا جائے گا، وہ باتیں چاہیے کہ ابھی بھی یاد ہوں. یہاں پر باب استفعال سے تعلق رکھنے والا ایک فائدہ یعنی کہ فائدے کی چیز یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ استطاع یستطیع میں جائز ہے کہ استفعال کی تا حذف کر دیں. فمستطاعوا اور ما لم تستطع قرآن مجید میں اسی باب سے ہے.
तो इस्तताअ यस्ततिउ ये भी क्या है, बाब इफ्तियाल से आता है, बाब इस्तिफाल से आता है। इस्तिफाल से बहुत सारे कलिमात आते हैं, उनमें से एक कलमा इस्तताअ यस्ततिउ भी है। तो इस्तताअ यस्ततिउ जो है इस कलमे के बारे में या इस फेल के बारे में जो सिर्फ खास है इस्तताअ यस्ततिउ से, सब पर फिट नहीं करेंगे, संसरा पर फिट नहीं करेंगे। तो कहने कि इस्तताअ यस्ततिउ में यानी कि इस कलमे के अंदर जायज़ है कि इस्तिफाल की ता हज़फ कर दें। यानी यहाँ पर इस्तिफाल की ता कहाँ पर है, जैसे है इस्तताअ, तो यहाँ पर जो ता दिख रही है तो से पहले जो ता है ये इस्तिफाल की ता है। मुसारे में भी क्या है, जो तो से पहले जो ता दिख रही है ये भी इस्तिफाल की ता है। तो कहने कि इस्तताअ यस्ततिउ में जायज़ है कि इस्तिफाल की ता हज़फ कर दें। इस्तिफाल की जो ता है माजी में भी मुसारे में भी उसको हज़फ कर दें। तो अब कैसे जैसे कुरान में और इसी तरह से आया है, यानी कि हज़फ करके और बगैर हज़फ करके दोनों तरह से आया हुआ है। यानी कि जायज़ है, ये वाजिब नहीं है ता को हज़फ करना। इस्तताअ में वाजिब नहीं है ता को हज़फ करना, जायज़ है। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं ता आई हुई है और कहीं ता यानी कि इस्तिफाल की ता कहीं पर आई हुई है और इस्तिफाल की ता कहीं पर नहीं आई हुई है। तो जहाँ पर ता नहीं आई हुई है उसकी मिसाल क्या है, फमस्ताउ, ये कुरान में आया हुआ है ये कलमा फमस्ताउ, जिसकी असल क्या है फमस्तताउ, ये असल में है। लेकिन ता यानी कि तो से पहले ता यहाँ पर महजूफ है। और कुरान में एक दूसरा कलमा और भी आया हुआ है जहाँ पर इस्तिफाल की ता जो यानी कि इस्तताअ के अंदर महजूफ नहीं है, और वो ये है नहीं, ये भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, महजूफ है। तो यहाँ पर दो मिसालें इन्होंने जिक्र की हैं उस कलमे की, यानी कि इस्तताअ यस्ततिउ से आने वाले उस कलमे की जिसके अंदर क्या है इस्तिफाल की ता महजूफ है। तो यहाँ भी इस्ताउ है और यहाँ भी लम तस्ते, जिसकी असल है लम तस्तते। तो दोनों मिसालों में इस्तिफाल की ता महजूफ है। और कुरान में और बहुत सारी आयतें आई हुई हैं जहाँ पर इस्तिफाल की ता मज़कूर है, महजूफ नहीं है। तो ये एक फ़ायदे की चीज़, कहने का मतलब क्या हुआ इनका कि इस्तताअ यस्ततिउ में जो इफ्तियाल की ता है, इस ता को हमारे लिए जायज़ है कि हम उसको हज़फ कर दें। जैसे कुरान में आया हुआ है इस्ताउ और मा लम तस्ते, दोनों जगहों पर ता क्या है, महजूफ है। हमारे लिए ये भी जायज़ है कि हम उस ता को हज़फ ना करें बल्कि उसको बोले, जैसे कि हो जाएगा इस्तताउ और मा लम तस्तते, तो दोनों सूरतें जायज़ है। ये फ़ायदे की चीज़ है। कहने तीसरा बाब यानी कि सलासी मज़ीद फ़ी गैर मुल्हक़, जिसके शुरू में हमज़े वस्ल लगा हो, तो उनमें से तीसरा बाब क्या है, इन्फ़ियाल है। कह रहे हैं कि इस बाब की अलामत क्या है, कह रहे हैं कि उसकी अलामत फ़ा कलमा के पहले नून की ज़्यादती है। जैसे कि फ़तरा, फ़ातरा, ये सलासी है, इससे पहले अगर नून लगा दें और उससे पहले हमज़ा वस्ल तो रहेगा ही, तो ये बाब इस्तिफ़ाल होता है। यानी कि फ़ा कलमा से पहले नून अगर आया हुआ हो तो वो बाब इस्तिफ़ाल से होगा, ये पहचानने का तरीका है। तो कह रहे कि तीसरा बाब इन्फ़ियाल, उसकी अलामत फ़ा कलमा के पहले नून की ज़्यादती है और ये बाब हमेशा लाजिम आता है। इसके बारे में एक चीज़ और है कि हमेशा लाजिम आता है, कभी भी ये मुतअद्दी नहीं आएगा। यानी इसकी मिसाल क्या है, इन्फ़ियाल की मिसाल जैसे अल इन्फ़ितारो, फट जाना। इसकी गर्दान क्या है, इसकी गर्दान है इन्फ़तरा यन्फ़तिरु इन्फ़ितारन फ़हुव मुन्फ़तिरुन, अल-अम्रु मिन्हु इन्फ़तिर वन्नहयु अन्हु ला तन्फ़तिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुन्फ़तरुन। तो यहाँ पे इन्फ़तरा इन्फ़ितारन फ़हुव मुन्फ़तिरुन, अल-अम्रु यहाँ पर जो है दूसरा वाला मजहूल और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर महज़ूफ़ है। अल-अम्रु मिन्हु इन्फ़तिर वन्नहयु अन्हु ला तन्फ़तिर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुन्फ़तरुन। उसके बाद आगे एक क़ायदा बयान कर रहे हैं इसी बाब इन्फ़ियाल से जो जुड़ा हुआ है, इस बाब इन्फ़ियाल से जिसका ताल्लुक़ है। कह रहे हैं कि जिस लफ्ज़ का फ़ा कलमा नून हो वो बाब इन्फ़ियाल से नहीं आता है। हमें मालूम है कि जो सलासी है फ़ा ऐन लाम है, तो उस सलासी के जो फ़ा कलमा है, तो फ़ा कलमा से हम पहले नून बढ़ा देते हैं तो वो और हमज़ा तो आएगा ही शुरू में, तो क्या हो जाता है वो बाब इन्फ़ियाल में चला जाता है। लेकिन अगर कोई कलमा ऐसा है जिसका फ़ा कलमा ही नून हो, तो क्या हम एक और नून का इजाफ़ा करके और बाब इन्फ़ियाल हम बना सकते हैं? तो मुसन्निफ़ का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस लफ्ज़ का फ़ा कलमा नून हो तो वो बाब इन्फ़ियाल से नहीं आता है, लेकिन बाब इन्फ़ियाल उससे नहीं बनाया जाता है, बल्कि अगर इन्फ़ियाल के माना अदा करने हों, मंजूर हों, तो उसको बाब इफ्तियाल में ले जाते हैं। जैसे इंतकसा सरनुगुआ, इंतकसा जैसे एक कलमा है नून काफ सीन, नकसा के माने झुकाना, इंतकसा के माने झुक जाना, सन्नुगु हो जाना।
तो नकसा को जब हम देखते हैं, नकसा फेल को, नून काफ सीन नकसा, तो यहाँ पर देखते हैं नून फा कलमा है, काफ ऐन कलमा है, सीन लाम कलमा है। तो यहाँ फा कलमा में नून है, तो क्या हम करेंगे इनफियाल में, अगर हमें इसको ले जाना हो तो हम क्या करेंगे, नून फा कलमा है उससे पहले एक नून का और इजाफा कर देंगे, यानी कि इनफियाल वाले नून को, और हमसे बस लाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे इन नकसा। तो मुसन्निफ का कहना है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर फ़ा कलमा में नून पहले ही मौजूद है तो फ़ा कलमा से पहले दूसरा नून ला करके इनफियाल बाब में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि ऐसी सूरत में इनफियाल का माना अदा करने के लिए हम उस फेल को, यानी कि नकसा है मिसाल के तौर पर, उसको बाब इफ्तियाल में ले जाएंगे, और इफ्तियाल में ले जाएंगे, और वो इफ्तियाल इस इमरजेंसी वाली सूरत में क्या है, इनफियाल का माना अदा करेगा। तो जैसे यहाँ पर मिसाल है इन नकसा, तो नकसा जो है, तो इसमें हम देखते हैं नून काफ सीन नकसा, यहाँ पर फा, ये इसका जो फ़ा कलमा है वो नून है, तो ऐसी सूरत में इसमें क्या किया गया है कि इसको बाब इफ्तियाल में ले जाया गया है। और बाब इफ्तियाल में क्या करते हैं कि फ़ा कलमा के बाद ताए इफ्तियाल का इजाफा कर देते हैं, और शुरू में हमसे वसल तो लगा ही रहता है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, इफ्ताला के वजन पर जाता है इंतकसा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस लफ्ज़ का फ़ा कलमा नून हो वो बाब इनफियाल से नहीं आता, बल्कि अगर इनफियाल के माना अदा करने मंजूर हों तो उसको बाब इफ्तियाल में ले जाते हैं। जैसे इंतकसा सरनुको, यानी कि झुक जाना, नकसा, जैसे कहेंगे नकसा अल-अलमा फंतकसा, कि फ़लाँ आदमी ने झंडे को नीचे झुकाया और वो झंडा नीचे झुक गया, तो ये माना है इंतकसा माने झुक जाना। चौथा बाब है बाब इफ़इलाल, इफ़इलाल, और चौथा बाब की चीज़ का जो बात चले कि सोलासी मज़ीद फ़ी गैर मुल्हक़ बा हमज़े वस्ल, इसका जो चौथा बाब है वो है बाब इफ़इलाल। तो इफ़इलाल कह रहे हैं कि उसकी अलामत लाम कलमा की तकरार है, और माजी में करके उसकी अलामत लाम कलमा की तकरार है, यानी कि कैसे हम पहचानेंगे कि बाब इफ़इलाल से है, तो कहेंगे अगर लाम कलमा मुकर्रर हो और माजी में हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ हों तो ऐसी सूरत में हमें समझ जाना चाहिए कि ये बाब इफ़इलाल से है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है इहमर्रा, इहमर्रा इसकी असल है इहमरारा, इहमरारा, तो आखिर में जो रा है ये लाम कलमा है, और ये रा जो कि लाम कलमा है मुकर्रर है क्योंकि 2 रा आए हुए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि इहमर्रा में लाम कलमा मुकर्रर है, और दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताया कि माजी में हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ हों, तो यहाँ जब हम माजी इसकी देखते हैं, इहमर्रा जो माजी देखते हैं, तो यहाँ पर शुरू में जो हमज़ा है ये हमज़े वस्ल है, इसके बाद देखते हैं कि 4 हर्फ है, तो नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 हर्फ भी है, पहला हर्फ हा है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ पहला रा है, और चौथा हर्फ दूसरा रा है, क्योंकि इसकी असल है इहमरारा। तो जो भी हर्फ मुशद्दद होता है वो दर हकीकत 2 हर्फ होते हैं, तो ये शुरू में हमज़े वस्ल है, उसके बाद हा, उसके बाद मीम, उसके बाद 2 रा, तो 4 हर्फ है। तो इस तरह से ये बाब इफ़इलाल, तो यहाँ पर एक तरह से समझने के लिए इन्होंने बताया कि बाब इफ़इलाल को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बाब इफ़इलाल से है, तो हम उसके लाम कलमा को देखेंगे कि अगर वो लाम कलमा मुकर्रर है, और उसके माजी में देखेंगे कि हमज़े वस्ल के बाद 4 हर्फ हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें किसी बाब में पाई जाती हैं तो वो बाब इफ़इलाल से कहलाया जाएगा, वो बाब इफ़इलाल से होगा। जैसे अल-इहमिरार सुर्ख होना, तो अल-इहमिरार मसदर है, ये इसका माना होता है सुर्ख होना। तो इसकी गर्दान करें कि बाब इफ़इलाल की गर्दान क्या आएगी, तो करें कि बाब इफ़इलाल की गर्दान है इहमर्रा यहमर्रु इहमिरारन फहुव मुहमर्रुन अल-अम्रु मिन्हु इहमर्रा इहमर्री इहमरिर वन्नहयु अन्हु ला तहमर्रा ला तहमर्री ला तहमरिर अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुहमर्रुन। तो यहाँ कुछ नई चीज़ें बताएंगे और उसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि इहमर्रा, यहाँ इसका जो माजी है इहमर्रा, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये असल में इहमरारा था, क्योंकि इफ़अलला माजी इसका है, इफ़अलला इफ़अलला इहमरारा, तो कह रहे हैं कि इहमर्रा असल में इहमरारा था। 2 हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए इहमरारा, यहाँ हम देखते हैं आखिर में कि 2 हर्फ हैं और दोनों हर्फ एक ही जिन्स के, यानी कि एक ही जैसे हैं, तो 2 हर्फ एक जिन्स के यानी कि एक जैसे जमा हो गए। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया गया है कि पहले वाले को साकिन कर दिया, यानी कि पहला वाला जो रा है उसको साकिन कर दिया गया, यानी कि उसके फतह को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि एक जिन्स के जमा हुए, अव्वल को साकिन करके दूसरे में इदगाम कर दिया, तो पहला वाला जो रा है इस रा को साकिन करके इस रा को दूसरे रा में इदगाम कर दिया, तो इस तरह से क्या बन गया, इहमर्रा हो गया, यानी कि पहले वाला जो रा है उसके फतह को हटाएंगे, उसको साकिन कर देंगे, और इस तरह से पढ़ेंगे इहमर्रा। तो वाज़ेह तौर पर यही चीज़ पढ़ने में मिलेगी इहमर्रा, और साकिन जो पहला हो जाएगा तो इसको दूसरे में इदगाम कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर तशदीद लगा देंगे, और इस तरह से हो जाएगा इहमर्रा।
کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یحمرو و محمرن اور اس کی امثال کی تعلیل ہے، یعنی کہ یحمرو کہ جیسے یہاں تھا احمررا، ایسے یہاں بھی یحمرو اصل میں کیا ہے یحمررو، یحمررو، یہاں بھی آخر میں دو را ہے، دو حرف ایک جنس کے ہیں، پہلا والا حرف مکسور ہے، دوسرا والا مضموم ہے دونوں۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ پہلے والے را کو ساکن کیا جائے گا اور پھر اس ساکن کو دوسرے والے را میں ادغام کر دیا جائے گا، تو یحمررو سے ہو جائے گا یحمرو۔ محمرن یہاں بھی اصل میں کیا ہے محمررن ہے، یہاں بھی بالکل سیم یحمرو جیسی تعلیل ہوگی کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں محمررن آخر میں کیا ہے دو حرف ہیں، دونوں ایک جنس کے ہیں، تو کیا کیا جائے گا کہ پہلے والے را کو ساکن کیا جائے گا اور پھر اس ساکن کو دوسرے والے را میں ادغام کر دیا جائے گا، تو ہو جائے گا محمرن۔ کریں کہ اور اس کے امثال کی تعلیل لے کر اور اس کے امثال کی تعلیل، تو اسی طرح احمرو محمرن اور اس کے امثال کی تعلیل، تو اس طرح سے جتنے اور دوسرے کلمات ہیں کہ جن کے آخر میں دو حرف ایک جنس کے ہیں، تو ایسے ہی کیا ہے تعلیل ان تمام کلمات میں کی جائے گی اور کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے یہاں پر انہوں نے کیا ہے ایک چیز اور بیان کی ہے امر کے تعلق سے۔ یہاں امر والی بات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔